Hi everyone, welcome back to the YouTube channel. If you're new here, my name is Khushi and I'm a final year student at SRCC University of Delhi. I scored 100 percentile in 5 subjects in the first ever edition of CUET conducted, and उन सब 5 subjects में से एक subject था English. And ever since you guys have been asking me to make this video on how I prepared for English and if you want to prepare for CUET 2025, so what should be your approach? And I have previously touched upon this topic in previous videos बहुत briefly, but this video is going to be an elaboration on all of those things and much more. So we look at the paper pattern, we look at the syllabus, and we analyze it, then हम एक step by step approach देखेंगे, both short term and long term, and last but not the least we'll solve a mock paper together which is based on a previous year question paper. And yeah, I hope this video is helpful. Let's get into it. Okay, first let's look at the paper pattern, and uske liye we look at the draft proposal on the conduct of CUET जो कि NTA ने निकाला था a few weeks ago, and this is the latest notification that we have regarding CUET 2025. तो अभी के लिए we'll base our preparation on this and wait for further notification, right? So इसके according the first and foremost thing is कि तुम्हारा exam होगा in a computer based test यानी CBT mode, which means कि pen and paper practice is one thing, but you also need practice in an online setting जहाँ पे तुम एक कंप्यूटर पे एग्जाम दे रहे हो ताकि तुम वहाँ जाके पैनिक ना करो and you have ample practice beforehand. Second and perhaps the most important notification that we have is कि all the questions will be compulsory and there will be negative marking. अब ये बहुत ध्यान से समझना. तो पहले क्या होता था कि there were 50 questions and उसमें से तुम्हें 40 attempt करने होते थे. So there was an internal choice. And for each question you got correct, तुम्हें 5 marks मिलते थे, 5 marks. And for every wrong answer you gave, तुम्हारे 1 number deduct होता था. So अब we can, क्योंकि 200 marks का paper होता है, तो we can ascertain कि 40 questions होंगे. For each right question you'll get 5 marks and that makes for 200 marks. And वही negative marking कि हर गलत question के लिए तुम्हारा 1 mark deduct होगा. अब ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी का मतलब ये नहीं है नेसेसरली कि तुम्हें सारे क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट करके आने हैं. वाई? बिकॉज सोच के देखो, तुम्हारा अगर एक क्वेश्चन सही हुआ तो उसके लिए तुम्हें 5 मार्क्स मिलेंगे, राइट? बट अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन गलत हुआ तो तुम्हारा 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का जाएगा, बट ऑल्सो यू लूज द 5 मार्क्स जो तुम्हें उसे सही करने पर मिलते हैं. सो यू आर क्यूमुलेटिवली लूजिंग 6 मार्क्स ऑन 1 क्वेश्चन. उससे बेटर ये नहीं है कि तुम वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही ना करो अगर तुम्हें नहीं आता तो. यू ओनली लूज 5 मार्क्स, राइट? क्योंकि उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट बहुत बढ़ता जाएगा अगर तुम ऐसे क्वेश्चन को गेस बेसिस पे करते रहोगे. सो माई सजेशन वुड बी हियर कि अटेम्प्ट द क्वेश्चन जिनके बारे में तुम बिल्कुल श्योर हो. दैट इज हाउ यू कैन मैक्सिमाइज योर स्कोर. बट या देव मेड इट टफर. अगर तुम्हें 200 on 200 चाहिए तो तुम्हें सारे क्वेश्चन आने चाहिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सिलेबस का एनालिसिस. So this is the PDF available on NTA's website regarding English and all the other languages. सबका syllabus same ही होता है. I'll put this in the description below ताकि तुम्हारे पास भी रहे. So first and foremost there's reading comprehension and ये 3 types का होता है, factual, narrative and literary. Types से हमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. We look at the skills जो हमें चाहिए. Then there's verbal ability जो कि बहुत ही vast term है and it includes everything under the sun that you can imagine regarding a language. So verbal ability could be tenses, it could be modals, it could be clauses, it could be idioms, anything. Then the third thing is rearranging the parts. This is essentially कि तुम्हें phrases दे देंगे, उन phrases को they'll mix them up and you have to arrange them into the correct order. And ऐसे questions बहुत ज़्यादा आते हैं. Then there's choosing the correct word. They'll give you a sentence and उसके बीच में they'll put a blank and you have to choose कि वहाँ पे क्या correctly fit होता है. Then there's synonyms and antonyms. What has the similar meaning? What is opposite meaning? And there's vocabulary. Vocabulary again is very very vast. तुम्हें नहीं पता कि किस word का मतलब पूछ लेंगे या कुछ. You cannot tell. So this syllabus is basically very very ambiguous. And इसको अगर हम skills के basis पे break down करें तो I have created this small note here. सबसे पहले तुम्हें चाहिए comprehension skills. You should understand कि what the question is saying to you. You should understand basic English.
यू शुड नो कि उस सेंटेंस या उस पैराग्राफ का मतलब क्या है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इन ऑर्डर टू सॉल्व द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस. Second, you need vocabulary skills. And I'm not saying you should be familiar with every word in the English language and you should know their meaning. But basic, जो भी तुम नया पढ़ते हो, just have the habit to write it down, to look up for its meaning and use it in your daily vocabulary ताकि you get familiar to it. Then you should have basic English skills जो कि हमें स्कूल से पढ़ाई जाती हैं. It could be tenses, modals, direct and indirect speech, error detection, question tags, articles, prepositions, conjunctions, active passive voice, rearranging the phrases, idioms and phrases, one word substitution, synonyms, antonyms and spellings. मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी पढ़े हैं एंड इन टॉपिक्स के बाहर यूजुअली नहीं आता है, सो अगर तुम इन सबको भी पढ़ के चले जाओगे तो यू आर प्रिटी मच सॉर्टेड. Based on these skills that we need to work on, now we'll look at two types of strategies. और एक होगा short term strategy और दूसरा होगा long term strategy. Now what I mean by that is कि अगर तुम्हें short term के लिए English समझना है for your CET exam, because अभी ज़्यादा time नहीं है, so what should be your approach? And the second is the long term strategy कि अगर तुम्हें एक language में understanding build करनी है, उसमें proficiency build करनी है, so what should be your approach, keeping the exam thing apart. So starting with the short term approach, before you pick up any book or any resource or go to any YouTube video, I want you to go on Google and search up for past year questions or question papers. उससे क्या होगा, you will get an idea कि actually questions आते क्या हैं and you will not go to irrelevant resources, right? तुम्हें पता चलेगा कि ऐसे questions आते हैं and you will stick to those questions. उसके अलावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है. I personally went on Google and searched up previous year questions and there were multiple I got. And उसमें से एक I'll solve at the end of this video, so stay tuned for that. Next, तुमने पढ़ लिया, PYQs पढ़ लिया, उसको ट्राई करो, पढ़ो 2-3 क्वेश्चन. अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तो बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा है, तो यू नीड बेसिक कंसेप्ट की क्लैरिटी. उसके लिए यू कैन पिक अप अ बुक. अब तुम्हें बुक चूज करने के लिए कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है. देयर इज नो वन सिंगल बुक जो तुम्हें सब कुछ पढ़ा देगी, बट यू नीड टू टेक केयर कि वो बुक रेलेवेंट है तुम्हारे सिलेबस से, जो तुम्हारे सिलेबस में आ रहा है, जो तुम्हारे PYQs में तुम्हें दिख रहा है, वो टाइप के क्वेश्चंस उस बुक में है या नहीं. सेकंड थिंग, उस बुक में होने चाहिए अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस सो दैट यू कैन प्रैक्टिस अ लॉट. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसमें PYQs होने चाहिए, पास्ट ईयर क्वेश्चंस होने चाहिए, मॉक पेपर्स होने चाहिए, सो यू गेट मोर प्रैक्टिस. एंड सिमिलरली यू कैन रेफर टू यूट्यूब वीडियोज जो तुम्हें फाउंडेशन कंसेप्ट्स क्लियर करा सकते हैं. देयर आर लॉट ऑफ वीडियोज दैट यू कैन रेफर टू. Me personally अपने टाइम पे आई यूज टू रेफर टू शिप्रा मिश्रा मैम का यूट्यूब चैनल एंड CUET अड्डा 24/7 के क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस एंड दे आर रियली गुड. सो या, एंड उस जब तुमने बेसिक कंसेप्ट अपने क्लियर कर लिए हैं तो नाउ यू नीड टू प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन. उसके लिए भी यू कैन रेफर टू एनी बुक दैट आई मैंशन बिफोर कि कौन से फैक्टर्स पर डिसाइड करते हैं, या फिर एनी यूट्यूब चैनल जो कि मैंने मेंशन किया, या फिर जो भी तुम्हें अच्छा लगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इंग्लिश ही रहेगी. यू नीड टू टेक केयर कि तुम्हारे सिलेबस से रेलेवेंट चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं या नहीं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू नीड टू सॉल्व मॉक पेपर्स ऑनलाइन, जो कि हमने सबसे पहली चीज़ डिस्कस करी थी. तुम क्वेश्चंस यूट्यूब वीडियो से देख के सॉल्व कर सकते हो, बुक से देख के सॉल्व कर सकते हो, बट तुम्हें मॉक टेस्ट भी सॉल्व करने हैं ऑनलाइन इन अ टाइम्ड एनवायरनमेंट. उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा. नेक्स्ट, let's look at the long-term strategy of building proficiency in English. अगर तुम्हारा मन करे तो you can do these things, you can include these habits into your daily life. अगर तुम एक extra mile जाना चाहते हो. So हमने सबसे पहले बात करी थी comprehension skills की, कि जब तुम एक passage पढ़ रहे हो तो तुम्हें वो समझ आना चाहिए कि वो क्या कहना चाहता है. And trust me, nothing can beat building proficiency than reading. अगर तुम कोई language बहुत अच्छे तरीके से read करते हो, it can be novels, it can be books, it can be as simple as news you read, या फिर कुछ भी तुम सोशल मीडिया पे पढ़ते हो इन इंग्लिश लैंग्वेज और उसको समझने की कोशिश करते हो, दैट इज़ प्रिटी मच इनफ. मेरे को पर्सनली बहुत कंफर्टेबल फील होता है इन सॉल्विंग इंग्लिश या स्पीकिंग इंग्लिश, बिकॉज मुझे 8th क्लास से हैबिट है रीडिंग की. सो आई वुड सजेस्ट कि अगर रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हो इन कुछ महीनों में, सो प्लीज़ डू दैट. उससे बेटर देयर इज़ नथिंग यू कैन डू टू बिल्ड इंग्लिश प्रोफिशिएंसी. एंड उसके अलावा हमने वोकैबुलरी की बात करी थी, तो वो भी रीडिंग से ही बिल्ड होती है. कैसे? तुम कुछ नया पढ़ रहे हो, तुम्हें उसमें एक नया वर्ड मिला, तुमने उसे नोट डाउन किया, उसे लुकअप किया कि उसका गूगल का मतलब क्या होता है उसका, देन तुम्हें पता चला कि हाँ ये मतलब है, तो तुमने उसे अपने डेली वोकैबुलरी में, कॉन्वर्सेशंस में यूज़ करना शुरू किया.
So that is how you make it a natural part of who you are, and in the long run it becomes really effortless. तुम्हें सोचना नहीं पड़ता कि इस वर्ड का ये मीनिंग है, अच्छा इस वर्ड का ये मीनिंग होगा. It just naturally becomes part of your vocabulary. So अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसा करना है, so you can take on these habits. Okay, so let's move on to actually solving a question paper कि क्या अप्रोच रहती है to solve a question paper. एंड मैंने बेसिकली गूगल पे सर्चअप किया था पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एंड दिस वाज द फर्स्ट पीडीएफ दैट केम. डिसाइड की इंग्लिश की आंसर की है सीयूटी 2024 की फिर 15 मई 2024, एंड आई लिंक एवरीथिंग इन द डिस्क्रिप्शन. तो तुम्हें अगर चाहिए तो यू विल फाइंड इट देयर. सो या, लेट्स लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन. रीअरेंज द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द राइट सीक्वेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस. सो पहले मैं सारे सेंटेंसेस एक बार पढ़ लूँगी टू गैदर ये कहना क्या चाहते हैं, जस्ट टू गेट अ बेसिक आइडिया. कुछ भी मैं अभी सॉल्व नहीं कर रही, ठीक है. फॉर 7 hours बट वॉज हार्डली बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ एनी मोटिवेशन एबल टू डिसाइड हू द मर्डरर वॉज, शी वर्कड ऑन द केस. अच्छा, तो राइट ऑफ द बैट मुझे एक सब्जेक्ट मिल गया है, सो विच इज शी इन द डी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो ये तो बेसिक नॉलेज है कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होगा. So I'll say कि she worked on the case. Okay, सबसे पहले ये, and then able to decide तो नहीं हो सकता because of the absence भी नहीं हो सकता. For 7 hours but was hardly. This actually makes sense. She worked on the case for 7 hours but was hardly able to decide who the murderer was. Makes sense because of the absence of any motivation. हो गया solve. That is how easy it is. And yeah, you can see कि DACB ही answer है. Second, the candidate assured the interviewers that the dip in her grades during her second semester was in dash since she had always been a top scorer in the first semester. ठीक है, options है anomaly, allay, adage, abatement. Okay, I'll be very honest, इनमें से मुझे सिर्फ anomaly का मतलब पता है. I don't know what allay means, I don't know what adage means, and I don't know what abatement means. An anomaly basically means कि something that is unusual, something that is unnatural, and that actually fits here. So anomaly is the right answer. Third है match the words in list 1 with their definitions in list 2. सबसे पहला वर्ड मुझे दिख रहा है theocracy. I know for a fact एक वर्ड में अगर क्रेसी है, and this I've built because of practice कि मैंने जितना पढ़ा है. theocracy, क्रेसी का मतलब होता है something that is related to the government. Suppose democracy, democracy से relate करो उसको. सो आई एम प्रिटी श्योर कि इसका मतलब समथिंग फॉर गवर्नमेंट, एंड मुझे थर्ड वाले में दिख रहा है अ गवर्नमेंट बाय डिवाइन गाइडेंस और रिलीजियस लीडर्स. मेक सेंस, एब्सोल्यूट सेंस. मेगलोमेनिया, आई डोंट नो व्हाट दिस वर्ड मीन्स, बट आई डू नो दैट मेनिया मीन्स गोइंग क्रेजी या समथिंग, फ्रेंजी या समथिंग. So, one who keeps drugs for sale? No. One who collects and studies objects? No. A morbid delusion of one's power, importance or godliness. Make sense? Megalomania को मैं 4 से connect करूँगी. Apothecary. Apothecary just rhymes with drugs and prescriptions, right? So, apothecary, one who keeps drugs for sale and puts up prescriptions. That makes sense in my head. Antiquarian. Antique, one who collects and studies objects or artistic works. Makes perfect sense. So, तुम देख सकते हो आंसर भी इसका यही है. थियोक्रेसी इज थर्ड, मेगलोमेनिया इज फोर्थ. तो ऐसे करके यू जस्ट नीड टू, तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें सारे वर्ड्स का मतलब पता हो, यू जस्ट नीड टू बी स्मार्ट अबाउट इट. ऐसे ही देयर इज फिल इन द ब्लैंक्स अगेन. देयर इज अनदर फिल इन, सिनोनिम आ गया टॉइंग. We've been toying with the idea of transferring all our business from physical to online sales only. तो तुम ऑप्शंस अभी देखो भी मत, इसका यही मतलब है ना कि they've been considering the idea of transferring their business. So यही आएगा यहाँ पे. लॉन्च यहाँ पे सेंस नहीं बनता, बिन लॉन्च कुछ नहीं होता, बिन शोइंग सेंस नहीं बनाता, बिन केयरफुल अगेन सेंस नहीं बनाता, तो बिन कंसिडरिंग. नेक्स्ट अगेन देयर इज मैचिंग एंड एवरीथिंग. Most of the guests arrived for the concert. ये preposition आ गया, by bus. This is very very simple. ये तुम्हें basic concept से ही समझ आएगा. Then opposite हो गया. The president finally had to dash the demands of the public for his resignation. Accede to, which means कि उन्हें करना पड़ा. ऐसे ही there's another rearranging the sentence. वही पहले वाली approach solve करना जो मैंने first question में की थी. Then idioms. Blow the gaff, at the end of your tether, be full of pains, want to curl up and die. Okay,
ऑनेस्टली बता रही हूँ, मुझे पहले 3 का बिल्कुल मतलब नहीं पता. आई नो वॉन्ट टू कर्ल अप एंड डाई मीन्स बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड होना. तो सबसे पहले मैं वो ढूंढूंगी इसमें से. फील अनेबल टू डील विद समथिंग, फील टेरेबली अशेम्ड एंड एम्बेरस्ड. आई गॉट इट. D इज 2. अब मैं ऑप्शंस में देखूंगी, फर्स्ट वाले में D2 से मैच हो रहा है और फोर्थ वाले में D2 से मैच हो रहा है. ठीक है, मेक सेंस. A और 3, तो A मुझे देखने की जरूरत भी नहीं है और मुझे B और C में से गेस करना है. तो एट द एंड ऑफ योर टेथर या बी फुल ऑफ बीन्स. सो 1 and 4, फील अनेबल टू डील विद समथिंग एंड बी फुल ऑफ एनर्जी. सो अब मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि बी फुल ऑफ बीन्स हैज टू मीन बी फुल ऑफ एनर्जी, राइट. एट द एंड ऑफ योर टेथर तो कुछ हो नहीं सकता बी फुल ऑफ एनर्जी, एंड एट द एंड ऑफ योर टेथर हैज टू बी फील अनेबल टू डील विद समथिंग. तो मुझे पता चल गया कि द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन. ठीक है, अगेन प्रेपोजिशंस के क्वेश्चंस, रीअरेंजिंग. तुम देखोगे रीअरेंजिंग के बहुत सारे क्वेश्चन, देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चन, सो प्रैक्टिस दोज अ लॉट. देन तुम ये देखो पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं. सो सबसे पहले तुम्हें पैसेज नहीं पढ़ना, तुम्हें क्वेश्चंस पढ़ने हैं उसके नीचे के. Fill in the blank with the correct option to complete the sentence. The author grew up with the expectation that she would take up. Okay. इसके लिए तुम्हें स्टार्टिंग में ही मिल जाएगा इसका आंसर. तो यहाँ पे for most of my life my father had been a Hindi editor and critic. Off and on he translated writings into English from Hindi. He was fond of saying that a failed writer becomes a critic. So हमें पता चल रहा है सीधा सीधा कि वो क्रिएटिव राइटिंग में ही इसका आंसर होगा. Then 18th का है, when her father said she will go far, he meant that she will go far. ये तो जनरल नॉलेज है कि he meant that बहुत आगे जाएगी हमारी बेटी, she will achieve great heights in life. तो ये तो हमें सीधा ही मिल गया, हमें पैसेज पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ी. This is how you save time in the exam. Choose a statement which is not true. ये अभी मत सॉल्व करना, ये तुम्हें पैसेज पढ़े बिना नहीं पता चलेगा. एंड आधा पैसेज पढ़ के भी मत सॉल्व करना. रीड द होल पैसेज देन डिसाइड दिस. ये जो अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे क्वेश्चन होते हैं, ये तुम पूरा पैसेज पढ़ के ही डिसाइड करोगे. एंड देन बेसिकली तुम्हारे सिनोनिम्स उस पे क्वेश्चन है. चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड यूबिक्विटी एज इट अपीयर्स इन द पैसेज. I don't know what ubiquity means, but I do know what occasional means, and it is not ubiquity. Ubiquity is not restricted, it's not unwanted. Omnipresence basically means ki something that is present all around you, like God. So ubiquity does mean omnipresence. Then passage, again बहुत सारे passages होते हैं. So this is how you save time in solving those questions, right? Again passage, ये सारे आंसर्स तुम्हें बहुत इजीली उसमें मिल जाएंगे, अनलेस एंड अनटिल दे आर बेस्ड ऑन योर एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग की व्हाट इज द ऑथर ट्राइंग टू से या ऐसा कुछ. बट यूजुअली दैट डज नॉट हैपन, इट्स वेरी इजी यूजुअली. ठीक है, एडवर्ब्स हो गए, फ्रेजल वर्ब्स हो गए. अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो. आई डिडंट नो राहुल वाज इन द हॉस्पिटल. इफ आई डैश आई वुड डैश हिम. ठीक है, if I knew, I would go him. Doesn't make sense. If I had known, I would have visited him. Makes perfect sense. If I have known, I would be going him. Again, doesn't make sense. If I know, I would had gone him. कोई सेंस नहीं बना रहा. एक ही जो सेकंड ऑप्शन है वही सेंस बना रहा है, तो तुम्हें बहुत क्लियरली दिख जाएगा. ठीक है, ओके. ऐसी अगेन इट एंड्स विद द रीअरेंजिंग क्वेश्चन एंड वही सॉल्व करो. देखो जैसे ए पार्ट इज आर इनबॉर्न बट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर आर लर्नड आर रिस्पॉन्सेज टू बेसिक टेस्ट्स परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स द मेन. ओके, सो आर रिस्पॉन्स, देखो ए पार्ट में आर से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, हो ही नहीं सकता. कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर्स आर लर्नड, अगर ये सेंटेंस की स्टार्टिंग होती तो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर के बाद कॉमा नहीं होता. परसेप्शंस ऑफ स्मेल्स द मेन, इससे भी नहीं होता. So our responses to basic tastes. इसके बाद क्या आ सकता है? Our responses to basic tastes are inborn but are, okay, makes perfect sense. Our responses to basic tastes are inborn but are perceptions of smells. The main constituents of flavor are learned. इस सेंटेंस का मतलब बन रहा है कि हमारे जो बेसिक टेस्ट के रिस्पॉन्सेज होते हैं वो हमारे अंदर ऑलरेडी होते हैं, बट जो परसेप्शन ऑफ स्मेल होता है, हाउ दिस फूड स्मेल्स, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फ्लेवर होता है, दोज आर लर्नड.
So इसका आंसर हो गया CADB. And yeah, that is how you basically solve a question paper. Try to find more ऐसे question papers ताकि तुम्हें actually idea मिले कि exam में आता क्या है and तुम directly उस source से practice करो, which is you can trust, and that will help you actually prepare for your exam. And yeah, that is it for this video. I hope this was helpful. I'll see you in the next one. Bye bye.